in the Puranas how Rama stood for her Yeah, the wife wife Sita. Sita, and how Hanuma safeguarded the Sita. So who know the real Purana, who really have respect towards Hindu community, those people will not comment like this on anybody. 88% of Muslims has voted Congress not for the guarantees. कांग्रेस हमारे लोगों को सेफ गार्ड करेगी, कम्युनलिज्म को दूर करेगी, बट दिस कांग्रेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग. दिस शोज दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू सेफ गार्ड मुस्लिम्स. On 24 December, RSS leader Prabhakar Bhatt made controversial remarks in Mandya. He stated that Muslim women got permanent husbands after Modi government banned triple talaq. This has led to protests across the state. The first FIR was registered by social activist Nazma Nazir. The Congress government has taken a backstand and said that they will not arrest Prabhakar Bhatt. The High Court has as well as stalled the arrest as of now. We'll get to know more about the updates in the next hearing. However, let's talk to the social activist Nazma Nazir to know more about her opinion on this issue. So today we have with us activist Nazma Nazir and the one who filed an FIR against Prabhakar Bhatt. So let's talk to her to know more about her opinion on his comments. Thank you so much, ma'am, for doing this firstly. तो पहले हमें अब ये बताइए, जो आरएसएस लीडर प्रभाकर भट्ट ने जो कमेंट किया है, आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में, और आपने एफआईआर क्यों फाइल किया? सी फर्स्ट पॉइंट, वो वुमन मॉडेस्टी के बारे में बात किया है, ताकि कौन सी बात पब्लिक में नहीं करना है, करने का नाजायज़ है, उस तरह के लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके वो बात किया है. He was just telling for Muslim women there is a husband for every day, I mean each day one. After मोदी आने के बाद ही इनको परमानेंट हस्बैंड मिला है बोल के बात किया है. That's actually irrelevant on that प्रोग्राम के लिए irrelevant है. संकीर्तन यात्रा चल रहा था, आप अगर सच्ची राम भक्त हो तो राम के बारे में बात करना था, सच्चे हनुमान भक्त हो तो हनुमान के बारे में बात करना था. खुद राम और हनुमान कोई फीमेल के बारे में, कोई स्त्री के बारे में बात इसी तरह के बात करना नहीं मानते थे. यू नो राइट, वी नो इन द पुरानास हाउ रामा स्टूड फॉर हर वाइफ सीता and how Hanuma safeguarded the Sita. So who know the real Purana, who really have respect towards Hindu community, those people will not comment like this on anybody. मुस्लिम महिला नहीं, कोई भी महिला के बारे में इस तरीके की बात जायज़ नहीं है. And along with that, UAP अट्रैक्ट होने की तरह बात किया है. टू कम्युनिटीज़, टू रिलीजियंस के बीच में दंगा लगाने का, लड़ाई लगाने की बात भी वो किया है. तो आई फाइल्ड अ कंप्लेंट. आई थॉट दैट्स माय राइट. आई रिक्वेस्टेड गवर्नमेंट टू पुट सुमोटो केस. गवर्नमेंट रेस्पॉन्ड नहीं की, तो मेरा हक है कंप्लेंट फाइल करना, कंप्लेंट दर्ज करना, बीइंग अ फीमेल, बीइंग अ कन्नड़ती, बीइंग अ पर्सन फ्रॉम मैसूर. So I thought it's my responsibility, I should go and file the case. And you know, श्रीरंगपटना एक हिस्टोरिकल प्लेस है. वहाँ पे हज़रत टिप्पू सुल्तान की जो भी उनकी सल्तनत थी वो वहाँ पे चली है. When Tipu Sultan is not ready to do the compromise, then why should I? I'm also a politician, but I don't want to do the compromise. So when government is compromising with them, I thought it's my right to file the complaint, so I just filed. Also, the High Court has stalled the arrest, and that has happened on your complaint, like the FIR that you had filed it. तो इसमें आपका जो High Court का जो अभी at least order है, उसके बारे में आपका क्या opinion है? कोर्ट के जो चल रहा है, कोर्ट की वर्डिक्ट के बारे में या कोर्ट के बारे में मैं ज़्यादा बात करने नहीं जाती. बट सुप्रीम कोर्ट में एक वर्डिक्ट है, जो भी कम्युनल रियोट्स कराने के लिए प्रोवोक करते हैं, तो कम्युनल थिंग्स को बात करते हैं, उनको विदाउट एनीथिंग यू नीड टू अरेस्ट बोल के सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है. बट आई डोंट नो व्हाई कर्नाटका गवर्नमेंट, कांग्रेस गवर्नमेंट डिडंट अरेस्टेड हिम. So even public prosecutor has openly telling government don't have any intention to take him to custody. मेरे जो वकील थे एडवोकेट बालन, उन्होंने मेरे तरफ से वकालत भी डाली और बात भी की. When government itself is not showing interest to take him to custody,
then there is no meaning of arguing there. Even खुद जज साहब ने वो बता दिए, तो क्या कर सकते हैं. ऑल्सो अब जैसे अब गवर्नमेंट के रिस्पॉन्स के बारे में बोल रहे हो, कांग्रेस अर्लियर जैसे जब वो मई में पावर में आए थे, उनका ये दे हैड सेड दैट देयर विल बी नो मॉरल पॉलिसिंग, एंड चीफ मिनिस्टर सिद्धरामैया ने काफ़ी ओपनली कई बार सेक्युलरिज्म का मैसेज के बारे में बहुत बात की है, बट राइट नाउ देयर इज नो एक्शन ऑन प्रभाकर भट्ट. सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस होल? See, after seeing this, मुझे भी कांग्रेस गवर्नमेंट के बारे में बहुत फेथ था. And these people will definitely scream all these communal बोल के. But when this happened na, I was just shocked. I was in dilemma for some hours and some days. Still I'm in dilemma actually. क्या चल रहा है? 136 super majority देके 88% of Muslims has voted Congress not for the guarantees. कांग्रेस हमारे लोगों को सेफगार्ड करेगी, कम्युनलिज्म को दूर करेगी, इस मुद्दे पर वोट किए हैं. बट दिस कांग्रेस इज नॉट डूइंग एनीथिंग. भी इलेक्शन पॉलिटिक्स करने के में ही बिजी हो गए हैं. और दिस शोज दे डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू सेफगार्ड मुस्लिम्स. अगर ये प्रभाकर भट्ट ने मुसलमानों लड़कियों के लिए बात किया, मुस्लिम फीमेल्स के बारे में बात किया है, यू जस्ट इमेजिन अगर कोई और कास्ट के बारे में, कोई और कास्ट के फीमेल्स के बारे में, कम्युनिटी के बारे में बात करता ना, बियॉन्ड द पार्टीज, सारे जेडीएस हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, सारे एमएलए, सारे नेता रोड में ठहरे होते. बट वी आर मुस्लिम फीमेल्स, वी आर वेरी अनफॉर्चुनेट. वी डोंट हैव अ सिंगल वॉइस. Our MLAs are there. I don't know why they are not speaking. We have female MLA as well. I don't know why she's also not speaking. Our woman minister, she's also not speaking. This shows ये मुसलमान लड़कियों को आज हम बात किए हैं, कल कुछ भी करेगा तो चलेगा, ये माइंडसेट दिमाग में बैठ जाएगा. तो I don't know why these kind of behavior, these kind of ignorance. हम सप्रेस्ड क्लास हैं, अनऑर्गेनाइज्ड क्लास हैं, अनऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी है, इसलिए तुम ऐसा कर रहे हो. अगर इलेक्शन ही इंपॉर्टेंट है तो आएगा भाई, अब एमपी इलेक्शन आएगा, बात मत करो, मुंह मुझ के बैठो, फिर आएगा, फिर आपको मारेंगे, तोड़ेंगे, हम अरेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि टीपीजेडपी इलेक्शन आएगा, फिर भी आपके जान निकाल देंगे. मुसलमान लड़कियों को गली गली में जो चाहे वो कर देंगे आरएसएस के गूंस, तब भी तुम चुप बैठ जाओ क्योंकि बीबीएमपी इलेक्शन आएगा, म्युनिसिपैलिटी इलेक्शन आएगा, फिर चुप बैठो क्योंकि नेक्स्ट एमएलए इलेक्शन आने वाला है. सिर्फ इलेक्शन जीतना ही इनका मकसद है. मुझे बहुत 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 दुखित हूँ मैं अंदर से. मैं जब जेडीएस में थी, कांग्रेस मेजॉरिटी में आई, फिर भी मैं बहुत खुश थी. यू नो व्हाई? ओ माय गॉड, फाइनली कांग्रेस गवर्नमेंट आया है. सीएम सेक्युलर हैं, जो मिनिस्टर लोग हुए हैं वो भी सेक्युलर हैं, और खुद सब बोल रहे हैं कि हमें कम्युनलिज्म को एक दिन के लिए भी यहाँ पे होने नहीं देंगे, कम्युनल रियोट्स होने नहीं देंगे. तो वी वॉज वेरी हैप्पी. बियॉन्ड माई पॉलिटिकल थिंग्स आई वॉज वेरी हैप्पी. बट when these all things are happening, no one is opening their mouth and government is not ready to take actions. Literally I'm in dilemma. जो प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, 17 गर्ल्स के ऊपर सुमोटो लिया गया है, और एक हमारे कॉमरेड के ऊपर मैंगलोर में सुमोटो दर्ज किया गया है. प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, जो सेकुलरिज्म की बात कर रहे हैं, जो आपकी गवर्नमेंट आने के लिए रीजन बने हैं, उनके ऊपर आप सुमोटो डालते हो. जो आपको खिलाफ करते आया है, दंगे मचाते आया है, हिंदू मुसलमानों का झगड़ा बरसों से करता है एक लड़का प्रभाकर भट्ट, इसके ऊपर यू आर नॉट रेडी टू टेक एनी काइंड ऑफ एक्शन. इट शोज देयर इज नथिंग डिफरेंस बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस. ऑल्सो जैसे हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, रिसेंटली former Chief Minister H.D. Kumaraswamy also, he said that I take back my words against Prabhakar Bhatt. I think that happened in Mangalore, where he was like, he felt sorry for criticizing him. What do you have to say about? I just want to tell Kumar Anna, तुम जो जानते थे कल्लड़ का प्रभाकर के भट्ट के बारे में, वो 100% सच था. मैंने ही आपको बहुत बार बताया है कुमार अन्ना को. तो जो भी मैं बताई थी कुमार अन्ना, वो सच है. आप जाके उसके पास माफ़ी पूछ के आए, माफ़ी चाह के आए, देखो वो क्या बक बक कर रहा है, बकवास कर रहा है, वो भी आपकी मंडिया में,
आपके मंड्या में, तो आप जानना है, कुमार स्वामी भी खुद जानना है। वो कुमार स्वामी है ना, फीमेल्स को बहुत रेस्पेक्ट करने वाले इंसान हैं। मैं उनके साथ काम करके देखी हूँ। कुमार स्वामी को खुद लाजिम नहीं है कि ऐसे इंसान के साथ बर्तावा रखे। Okay. Also, same day पे प्रभाकर भट्ट ने उसी स्पीच में he also commented on Muskan, the Yeah. girl who was who came to be known as the girl who screamed Allahu Akbar. Yes. So उसके ऊपर भी कमेंट किया गया था, हिजाब इशू के बारे में भी ओवरऑल कमेंट किया उन्होंने. What is your opinion about those things? He don't have any right. She is a young girl. She had a long future. She want to study. She want to make her own life. She want to lead the life. वो एक नादान बच्ची के ऊपर आप ISIS, टेररिस्ट ये सब लगाने का है ना, दिस इज लिटरली UAP अट्रैक्टिंग एक्शन है. किसी के ऊपर हम ऐसा ही नहीं लगा सकते, दावा नहीं लगा सकते. सो आई एम इन कॉन्टैक्ट विथ मुस्कान के पास से फिर हम एक केस दर्ज करना चाह रहे हैं इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए. इवन आई हैव मेंशन्ड ऑल दोस थिंग्स इन माय एफआईआर एज वेल. And now lastly, what actions do you demand from the government, both central opposition as well as the government in power? सी जो भी पार्टीज हैं, आपको अगर लिटरली वुमेन्स के बारे में रेस्पेक्ट है, सेंट्रल का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अगर सच है, ये कर्नाटका का गारंटी स्कीम दे के हम आपको उन्नति में लेके जाएंगे बोलने का जो मोटो है, अगर ये सब सच है तो प्लीज़ वी आर रिक्वेस्टिंग यू, बियॉन्ड पार्टी, बियॉन्ड आइडियोलॉजी, बियॉन्ड रिलीजियस, बियॉन्ड कास्ट, प्लीज़ स्टूड विद अस, हमारे साथ खड़े हो, लड़कियों के साथ खड़े हो. आज एक कम्युनिटी के लड़कियों के बारे में बात कर रहा है, कल आएगा वो आपके घर पे आपके लड़कियों के बारे में बात करेगा. क्या करोगे? आपकी कास्ट के लड़कियों के बारे में बात करेगा, आपकी कम्युनिटी के लड़कियों के बारे में बात करेगा. अगर इसको पनिशमेंट नहीं मिलेगी तो गली गली में कलर का प्रभाकर भट्ट जैसे चाहरे शुरू होंगे और गली गली में खड़के कमेंट्स पास किया जाएंगे. और आई डोंट नो व्हाट विल हैपन इफ यू आर नॉट सेफगार्ड द राइट्स ऑफ द वुमेन्स. इफ ऐसे ही फ्री छोड़ दिए तो कल वो रेप भी करेगा और बोलेगा ये गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी यार. तो दिस इज द टाइम, अगर इफ यू रियली हैव कंसर्न अबाउट फीमेल्स, वुमेन्स ऑफ दिस स्टेट, प्लीज टेक सम एक्शन. इलेक्शन आएगा जाएगा. Also, lastly, recently पास में प्रभाकर भट्ट इज अ मास ऑडियंस, ही हैज अ मास ऑडियंस, उनकी इतनी बड़ी फॉलोइंग है. बट ऐसे बहुत सारे लीडर्स, पॉलिटिशियंस, अदर रीजनल लीडर्स एज वेल, उन्होंने काफी हेट स्पीचेस दी है, एंड उससे सोसाइटी में काफी लोग प्रोवोक हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट स्प्रेडिंग हेटनेस इन पब्लिक. व्हाट वुड बी योर मैसेज टू दोज पीपल जो इन लोगों की बातों में आके दे गेट परस्यूडेड विद दैट? आपका उनके लिए क्या मैसेज होगा? I'm requesting to all my dear brothers and sisters, हम ऐसे समाज में जी रहे हैं कि यहाँ पे हिस्ट्री है ये वतन की, हिंदू मुस्लिम हारमनी की, कम्युनल हारमनी की. तो मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ इनके भड़कावे में मत आओ. आज एक कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं, कल ये आपके घर के लड़कियों के बारे में, आपके माँ बहन के बारे में भी बात करेंगे. तो डोंट टेक दीज काइंड ऑफ पीपल्स एज योर मॉडल. हम सब इंडियंस हैं, भारत माता को पूजा करते हैं. कन्नड़ी का पीपल भुवनेश्वरी को पूजा करते हैं. और ऑलमोस्ट ऑल पावरफुल गॉडेसेस, powerful itself shows that we have a huge respect to goddesses. If we really like Rama, if we really like Hanuman, if we really like Chamundeshwari, if we really respect any of our goddesses, तो ऐसे लोगों को फॉलो मत करना, ऐसे लोगों के भड़कावे में मत आना. ये आपके जान ले लेंगे, वतन को कुछ ना देंगे. These people are very dangerous and very venomous. कल्लड़ का प्रभाकर भट्ट kind of people are very venomous, very dangerous to this society. Thank you so much for doing this with us. For our viewers, you can let us know what is your opinion about these comments. What do you think about the hateful messages that are going on in our society? Let us know in the comments below, and like, comment and subscribe to Daily Salar Digital.